Good evening, students. Now we continue our chapter 3. Now we started a new chapter 4, pure kinematics. In pure kinematics, we studied about the physical quantities such like as the scalar quantities and vector quantities, which are we studied in your previous classes. Okay, that's are very simple quantities, and you know very well that what is the scalar and what is the vector. But in class 11th, we studied its broad form. ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो हम लिख सकते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके तो जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उन क्वांटिटीज यहाँ पर मेजरेबल हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। अब जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाइड करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। But there are a third quantity which are not in our syllabus, but it is required for our knowledge. That is the third quantity is the tensor quantity. So we specified the physical quantities into the 3 categories: scalar, vector, and the tensor. So first one, scalar quantities. Second one is the vector quantities. And the third one is the tensor quantities. So there are the 3 quantities which specified in the physical quantities: scalar, vector, and the tensor. So scalar and vector are very well known by you, but there are different quantities which is the tensor quantity. So we studied about it. So first one we take the scalar quantity. What is the scalar quantity? Just we take an example that we brought a 5 kg sugar from market. So 5 kg sugar represent only the amount of the sugar, only the magnitude of sugar, but it is not specified any particular direction or any special direction. That means those quantities which represent only the magnitude, only the amount, only the quantities and not the direction, it is called the scalar quantities. For example, मास के बाद में स्पीड के बाद में टेम्परेचर। तो दीज आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज व्हिच नॉट डिफाइन द डायरेक्शन बट ओनली डिफाइन द मैग्नीट्यूड। तो दिस रिप्रेजेंट द स्केलर क्वांटिटीज। ओके, सेकंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटीज। देन स्केलर हम लिखते हैं सबसे पहले। तो स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड। And what is the mean of magnitude? Magnitude mean is amount, magnitude mean is quantity. Have no direction. So have no direction. Okay. And scalar quantities becomes always positive because quantity की अगर बात करते हैं, amount की बात करते हैं, तो ये हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है, क्योंकि क्वांटिटी और अमाउंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि we bought -5 kg sugar or we travels -5 kilometer distance, they cannot be negative. So we say that the scalar quantities is always becomes positive, they can never be negative. So here second and the third logic says that it always positive. Okay, so this one is the scalar quantities. अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स के अंदर हम मास ले लें, स्पीड ले लें, डिस्टेंस ले लें, तो these all are the scalar quantities: mass, speed, distance. This one is the temperature. These are the scalar quantities. Second thing, these quantities easily subtracted or added, यानी ये simple algebraic laws को follow करती है। आप स्केलर क्वांटिटीज को ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो यहां हम लिखते हैं इट फॉलोज simple algebraic method. So this is the scalar quantities. Got it? Now the second term is the vector quantity. Okay. Now the vector. What is the vector? Those
quantities which have direction as possible as magnitude. That means the quantities which represent the direction and magnitude both. For example, a vehicle moving in east direction with 20 km/h velocity. तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक व्हीकल 20 km/h वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो 20 km/h रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, 20 km/h रिप्रेजेंट द क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ईस्ट represent the direction. So here we have the magnitude and direction both. So velocity is a vector quantity. For example, another example we take, a man pushes a box in forward direction with 5 Newton. ओके, तो 5 न्यूटन फोर्स से वो क्या करता है, बॉक्स को पुश कर रहा है. तो जब वो बॉक्स को 5 न्यूटन फोर्स से पुश करेगा तो उस कंडीशन के अंदर 5 न्यूटन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. तो हियर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो हियर द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, represent magnitude and direction both magnitude and direction, it is in vector. Okay, now the second one, it is always obeys वेक्टर अलजेब्रा. तो इट इज ऑलवेज ओबेज वेक्टर अलजेब्रा. ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है. वेक्टर अलजेब्रा इट इज अ कंप्लीटली डिफर फ्रॉम द सिंपल अलजेब्रा. ओके, तो वेक्टर अलजेब्रा के लॉज हम अभी पढ़ेंगे. तो सिंपल अलजेब्रा से कंप्लीटली डिफर होता है. तो दिस इज ऑलवेज ओबेज द वेक्टर अलजेब्रा. अब इसके अंदर डायरेक्शन होता है. तो डायरेक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, और कभी कभी हम ये बात कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी 0 हो सकता है. तो यहां पर हम लिखते हैं इट may be पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नाउ अगर हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं, देन व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर? दिस इज द फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन. These all are the examples. Momentum, all are the examples of a vector quantity. तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ लिख देते हैं. दिस द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम. तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, these all are the examples of the vector quantities. ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना सा ये कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज सिर्फ वो नहीं है जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करेगी. नो, इसकी एक डेफिनेशन के साथ एक लाइन और इंक्लूड होती है कि दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट इट इज कंपल्सरी फॉर दोज क्वांटिटीज obeys the vector algebra law. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. जैसे करंट की हम बात करते हैं. करंट क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव. सपोज 2 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. तो 2 एम्पियर इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. यू नो वेरी वेल दैट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो बाय आवर डेफिनेशन, बाय आवर वेक्टर नॉलेज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. Current becomes a vector quantity, but current is not a vector quantity. Why? Because it not obeys the algebraic laws. Vector algebra. It not obeys the vector algebra. यानी इसमें vector algebra का law follow नहीं होता. इसके अंदर simple algebra follow होती है. कैसे? देखिएगा. हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जंक्शन पॉइंट लेते हैं. जंक्शन क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज आकर आपस में मिलती हैं. तो we take a junction point. तो here we take a junction point. Okay, this is the junction point and here 5 branches are made. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. Okay, 5 branches are made. Then this one, the current flowing in this direction is 2 ampere, 1 ampere
ampere, 3 ampere. Now my question is, what is the total current at the junction point? Then what is your answer? So your answer is 3 to 5, 5, 1, 6, 7 to 9 ampere. Your answer that the total current at the junction point is 9 ampere. तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आपने ये किया क्या, आपने सिंपल एडिशन कर दिया. You simple added these values of current, and when you simple added these values of current, that means this quantity obeys the simple algebra. ठीक है, और this quantity obeys the simple algebra, so due to this reason the current is a scalar quantity because it not follows the vector algebra. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब तक कोई क्वांटिटी चाहे वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दे, चाहे वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दे, लेकिन अगर वेक्टर लॉस को अप्लाई नहीं करती है, वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है, तब तक वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी. ओके, तो द क्वांटिटी, तो हम न्यू डेफिनेशन क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, कि द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड आल्सो ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, अब नाउ वी डिवाइडेड द वेक्टर क्वांटिटीज इनटू द टू ग्रुप्स. टू ग्रुप्स में हम वेक्टर क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं. तो vector quantity can be divided into the two groups. First one is the polar vector and second one is the axial vector. First one, okay, what is the polar vector? Polar मतलब related to the pole, related to the fixed point, related to the definite point. तो polar vector is the vector which is starting at a fixed point at a definite point, it is called the polar vector. For example, displacement क्या होता है? Final minus initial, that means initial you always known. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि those vectors which passes, you कह सकते हैं हम, which starts always a fixed point is called the polar vector. या फिर इन वेक्टर्स को हम रियल वेक्टर भी कहते हैं. पोलर वेक्टर आल्सो नोन एज द रियल वेक्टर. और यहां पर अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? स्टार्टेड एट फिक्स्ड पॉइंट. ये हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होते हैं. अगर हम यहां इसका एग्जांपल लिखते हैं, देन एग्जांपल इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स. These are the polar vectors. Okay. Now second one is the axial vector. नाम से पता लग रहा है axial vector. What is the axial vector? तो अगर हम axial vector की बात करते हैं तो axial vector क्या होता है? जो किसी एक particular axis के surrounded rotate करता है. It is called the axial vector. तो second one हम बात कर रहे हैं यहाँ पर axial vector की. तो हम लिखते हैं यहां एक्सियल वेक्टर. तो एक्सियल वेक्टर में हम लोग क्या लिखते हैं? देयर आर द वेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन, यानी यूज्ड टू डिस्क्राइब रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर. यानी जो रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करेगा, कोई भी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल किसी एक्सिस के चारों ओर अगर रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने वाला वेक्टर इट इज कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर. ओके, यहां पर हम बात करते हैं कि रोटेशनल इफेक्ट कब शो होता है. रोटेशनल इफेक्ट तब शो होता है जब एक पर्टिकुलर एक्सिस आपको दिया जाता है. और रोटेशनल इफेक्ट या रोटेशनल मोशन को हम लोग एंगुलर मोशन भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज व्हेन द thing or object is rotated then they makes an angle. जब वो रोटेट करेगा तो वो क्या करेगा? makes an angle. तो एंगल की वजह से these motion are called the angular motion. तो जितने भी एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर वेलोसिटी हुई, एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, these all are classified या all are categorized in the axial vector form.
So we divided the vectors in two categories. First one is the polar vector and second one is the axial vector. Polar vector started at the fixed point and the axial vector which rotated about the fixed axis, it is called the axial vector. Okay, now the representation of the vector quantity. So our next topic, so our next video we represent, we show the representation of the vector quantities. Okay beta, thank you.